السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، ملک بھر میں اس ہفتے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 38.63% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی پر تاحال قابو نہیں پا سکی ہے۔ مہنگائی کی وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن عام آدمی اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے۔ دوسری طرف ملک میں سیاسی گرما گرمی کا ماحول جاری ہے۔ سیاسی بیان بازیاں جس تیزی سے جاری ہیں، اگر اتنی تیزی سے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا جائے تو یقیناً پاکستانی عوام سکھ کا سانس لیں گے۔ خبریں بہت ساری ہیں، تو چلیے بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ تک پہنچاؤں گی کراچی سے پورے ہفتے کی خاص خبریں۔ لاہور سے سفر میں میرے ساتھ ہوں گی مناہل۔ جی مناہل، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ مناہل شیخ۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ پولیس کے یوم شہداء کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا اعلان۔ لاہور کے سرحدی علاقے میں پنجاب کے روایتی کھیل تماچے دار کبڈی کا میدان سج گیا۔ دریائے راوی کی رونقیں بحال۔ کرکٹ سے روکنے پر نوجوانوں نے پی ایچ اے کے ملازمین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والی 12 سالہ باہمت لڑکی کی کہانی۔ ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب پولیس کے ایک اسپیشل رپورٹ میں کیے گئے انکشاف کے بارے میں۔ اور اسلام آباد سے اس سفر میں میرا ساتھ دیں گی رضیہ خان۔ جی رضیہ خان، کیا حالات ہیں اسلام آباد کے؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والی اہم خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو 3 سال مکمل۔ 5 اگست کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم استحصال منایا گیا۔ آرمی چیف کا نئے قائم کردہ آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ۔ جنگ کی نوعیت اور کردار بدل رہے ہیں، ہمیں اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، آرمی چیف۔ بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ راول ڈیم اسلام آباد میں پانی اپنی حد سطح کو چھونے لگا۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ K2 سر کرنے کے لیے اس سال ریکارڈ تعداد میں کوہ پیماؤں کی پاکستان آمد۔ K2 سر کرنے کے لیے پرمٹ کیسے اور کتنے کا ملتا ہے؟ دلچسپ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام میں۔ لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ ہر دکان پر 3,000 روپے انکم اور سیلز ٹیکس عائد کرنے کے معاملے میں کچھ غلطی ہوئی۔ مفتاح اسماعیل کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی سے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا کی سربراہی میں ایک وفد کی ملاقات۔ تاجروں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ اطالوی کونسل جنرل نے مشہور راگوسانی نیل موندو ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کراچی سے بولان میل کے ذریعے کوئٹہ بھجوا دیا گیا۔ پرنس مارشل آرٹس اکیڈمی نارتھ ناظم آباد میں ٹائیکوانڈو اور جمناسٹک کے انٹرا کلب مقابلوں کا انعقاد۔ کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ کراچی کے شہری ہوشیار ہو جائیں، مونسون کا چوتھا اسپیل شروع ہونے والا ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اس خبر سے کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے دکانداروں پر سیلز ٹیکس لگانے کے معاملے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ مفتاح اسماعیل نے برآمدی شعبے کو جلد اچھی خبر سنانے کا وعدہ بھی کیا اور حکومت کے مسائل سے آگاہ کیا۔ آئیے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب میں شریک ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
کہ फी दुकान 3,000 रुपए इनकम और सेल्स टैक्स आयद करने के मामले में कुछ गलती हुई, क्योंकि इन दुकानों में छोटे दुकानदार भी शामिल कर लिए गए थे। वजीर खजाना का कहना था कि किसी को भी नहीं पता था कि डॉलर कितना बढ़ेगा। डॉलर को काबू में लाने के लिए बैंकों का किरदार मजबूत रहा है और हुकूमत बैंकों के ताउन पर शुक्रगुजार है। मार्केट में तलब और रसद के तनासुब से डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव हुआ। शोबे ज़राअत और बरामदात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं और जल्द ही बरामदी शोबे के लिए तरगीबी स्कीम मुतारिफ करवा दी जाएगी। मुश्किल फैसले लेने पड़े, पेट्रोल और बढ़ गया, लेकिन हमने पेट्रोल बढ़ाया, महंगाई हमको पता है कि बढ़ गई इसकी वजह से। हमारी फर्स्ट थिंग इज टू अपने आप को जो है वो सॉल्वेंट रखना है और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाना है। तो इमीडिएट एक्शन तेज लेने से टू सेव कंट्री फ्रॉम द डिफॉल्ट, वो हमने कर लिया अल्लाह की मेहरबानी से। और अब आप आहिस्ते आहिस्ते देख रहे हैं कि जो कदम हमने उठाए समय आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का खिताब के दौरान कहना था कि हम जब इख्तदार में आए तो नादहिंदा होने का खतरा था, ताहम मौजूदा हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की बदौलत अब नादहिंदा होने के खतरात कम हो रहे हैं। रवां साल बजट खसारे पर काबू पाने की हिकमत अमली वज़ा की गई है, क्योंकि पिछले 4 साल में बजट खसारे की औसतन मालियत 3500 अरब रुपए रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क का टैक्स बराए GDP तनासुब 9.2% है, जिसे बेहतर बनाना है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आइंदा 3 माह तक दरामदाद में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा और गाड़ियां समेत दीगर गैर जरूरी अशिया की दरामदाद पर पाबंदी आयद की गई है। कॉर्पोरेट वाले बोलते रहे कि देखो आपने दुकानदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, दुकानदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, जबकि मैंने तो बहुत टैक्स लगा दिया था। वो 6 अरब रुपए को हम जो है 48 अरब पे लेके जा रहे थे और समथिंग लाइक दिस। लेकिन लोगों को समझ में भी नहीं आया। जिससे हमने पूछा सबने हाँ कहा मेरी एक बहुत टेक्निकल गलती हो गई, मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत सारी दुकानें बंद रहती हैं तो उसका 40-50 यूनिट का आ जाता है, उससे शायद 3,000 रुपये नहीं लेने चाहिए। पिछले साल मुल्क में 80 अरब डॉलर की दरामदाद और 40 अरब डॉलर से जायद का तिजारती खसारा हुआ। कोई भी मुल्क इतने बड़े खसारे के साथ नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशंस पर फौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास हैं। इलेक्शन में फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती हमारा आइनी मुतालबा है। हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज तलब कर सकती है। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पाक फ़ौज और रेंजर्स को होना चाहिए। कराची के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। हुकूमत और दीगर लोग फ़रार के रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं, उनका इलेक्शन से फ़रार का रास्ता न दिया जाए। हाफिज नईम उर रहमान ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन अमला सियासी तौर पर लगाया गया है, इस मामले को देखा जाए। नईम उर रहमान का मज़ीद कहना था कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि अवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चंद दिन पहले कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी से ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला की सरबराही में एक वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ्द ने ताजरों को दरपेश मसाइल, दोहरे टैक्सेस और दीगर शिकायत से मुताल्लिक कायम मकाम गवर्नर सिंध को आगाह किया। वफ्द ने आगा सिराज दुरानी को बताया कि हालिया बारिश से मार्केटों में कई तरह के मसाइल का सामना है। मुख्तलिफ बाज़ारों में ताहाल बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से दुकानदारों और ख़रीदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी तरह बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से भी ताजर परेशान है। इस सूरत हाल में बिजली की अदम फराहमी के बावजूद ज़ायद बिल दिए जा रहे हैं। इस मौके पर कायम मकाम गवर्नर सिंध का कहना था कि ताजर बरादरी की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं और ताजर कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पूरी कौम गमज़दा है। इसी हवाले से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं। ख़ास तौर पर रेलवे का शुबा फलाही सरगर्मियों के हवाले से बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान कराची से बोलान मेल के ज़रिए कोयटा भेज दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक की खुसूसी हिदायत पर कराची डिवीज़न की जानिब से कराची सिटी, कराची कैंट, ड्रिग रोड, लांडी और हैदराबाद स्टेशन पर रिलीफ कैंप कायम किए गए थे। और अब एक खबर मार्शल आर्ट के मुकामी मुकाबलों के हवाले से प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
चंद दिन पहले प्रिंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी नॉर्थ नाज़िमाबाद में टाइक्वांडो और जिम्नास्टिक के इंट्रा क्लब मुकाबले मुनक्किद हुए। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक, सेल्फ डिफेंस, तलवारबाजी, ननचकू और दीगर मार्शल आर्ट्स के शोबों में अपने फ़न का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुकाबलों के दौरान मेहमानों ने आग के गोले में से टाइगर जंप और प्रोफेशनल रेसलिंग पर बेइंतहा खुशी का इजहार किया। मुकाबलों के बाद मेहमान खुसूसी मास्टर फराज जाफरी और विंग कमांडर एयर फोर्स जनाब सईद उर रहमान ने कामयाब खिलाड़ियों में शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की और उम्मीद जाहिर की कि ये बच्चे और नौजवान हमारा मुस्तकबिल का सरमाया होंगे और खेलों के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कराची के शहरी होशियार हो जाएं क्योंकि मानसून का चौथा स्पेल भी शुरू होने वाला है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची के मुताबिक मानसून के चौथे स्पेल में इब्तदाई तौर पर हल्की और दरमियानी जबकि बाद में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अगस्त तक कराची में मुतदल बारिशों का इम्कान है। ताहम कराची और देही सिंध में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला 10 से 11 अगस्त के दौरान शुरू होगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि तेज़ बारिशों का ये सिलसिला 14 से 15 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। जी तो नाज़रीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगी ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस के यौम शहदा के मौके पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर पुलिस लाइन में पुलिस के शहदा की फैमिलीज और बच्चों के साथ मुलाकात की और उनके साथ यकजहती का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही ने इस मौके पर पुलिस के शहदा की फैमिलीज के लिए बड़े ऐलानात भी किए। मजीद बता रहे हैं साकिब भट्ट। पुलिस के यौम शोहदा पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हो गए पुलिस पर मेहरबान। रिस्क अलाउंस, डेली फिक्स अलाउंस वो मैं बहाल कर रहा हूँ आज से, और उस डेट से जब से मैंने अनाउंस किया था वो तमाम पिछले पैसे सबको मिलेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस लाइन में पुलिस के शोहदा की फैमिलीज और बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ यकजहती का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही ने शोहदा के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। अगर वो पढ़ना चाहें, 1 या 2 बच्चे, तो वो एचसन कॉलेज और या जो प्राइवेट बेस्ट स्कूल हैं, ग्रामर स्कूल हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं स्कूलों के, वो लाजम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कानून बना के, अब मैंने कानून बना के करना है और ताकि बाद में कोई तब्दील ना करे, तो वो फ्री एजुकेशन उनके लिए होगी, यूनिफॉर्म फ्री होगा, हर चीज़ फ्री होगी। चौधरी परवेज इलाही ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। परवेज इलाही ने पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने का अंदिया भी दिया। कहते हैं पुलिस की वर्दी बारोब होगी। जी नाजरीन, अब आपको बताएं कि पंजाब में आज भी देसी कुश्ती और तमाचेदार कबड्डी का खेल बड़े शौक से खेला और देखा जाता है। लाहौर के एक सरहदी इलाके में नौजवानों को नशे की लानत से दूर रखने के लिए हर साल कबड्डी का मैदान सजाया जाता है। इन मुकाबलों को देखने के लिए बॉर्डर एरिया के हजारों लोग जमा होते हैं। लाहौर के सरहदी इलाका डोगरा कलां में हर साल मुकामी सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह वली के उर्स के मौका पर कबड्डी का ये मुकाबला सजता है, जिसमें कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी शिरकत करते हैं। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। तमाचेदार कबड्डी बहादुरी, फुर्ती और मुहारत का खेल है। जब खिलाड़ी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लाते हैं तो फिर ताकत और फुर्ती काम आती है। चारों तरफ से तालियों की गूंज इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती है। लाहौर के सरहदी इलाके डोगरा कलां में हर साल मुकामी सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह वली के उर्स के मौका पर कबड्डी का ये मुकाबला सजता है, जिसमें कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। इंतजामिया के मुताबिक इसका बड़ा मकसद नौजवान नस्ल को नशे से दूर करके खेलों की तरफ लाना है। हमारे गांव की कोशिश है कि हम इस नौजवान नस्ल को जितना भी हो सके सहूलतें दें कि नौजवान खेलें कूदें
ताकि अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें। कबड्डी ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब का ये रवायती खेल देखने के लिए करीबी देहात से हज़ारों लोग जमा होते हैं। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते और इन्हें इनामात भी देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इन खेलों की सरपरस्ती करनी चाहिए। कबड्डी ऐसी चीज़ है कि उसमें बंदा तंदुरुस्त और तवाना रहता है। इसको प्रमोट करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करना चाहिए और आगे से आगे लेके आना चाहिए इनको। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स है कबड्डी, ये हेल्थी गेम है, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको तवज्जो देनी चाहिए। मुकामी लोगों के लिए ये खेल और मेले तफरीह का बड़ा जरिया है जिनका वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। नाजरीन, दरियाए रावी में पानी बढ़ गया जिससे दरियाए रावी की रौनकें बहाल हो गईं। लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गए। दरिया में पानी आने से मलाह भी खुश, बता रहे हैं बिलाल गौरी इस रिपोर्ट में। बल खाती तेज लहरों से दरिया रावी की रौनकें बहाल। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होने के लिए दरिया रावी पहुंच गई। शहरी रावी के दरमियान वाक़या कामरान की बारादरी पर मौसम से लुत्फ अंदोज होते नज़र आ रहे हैं। शहरी कहते हैं रावी में जिस तरह पानी अब आया है, सारा साल इसी तरह पानी आता रहे तो शहर की फ़ज़ा खुशगवार और आलूदगी से पाक हो जाएगी। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन रावी में पानी नहीं था, जिसकी वजह से हम जो है ना वो नहीं आ सके थे, लेकिन अब पानी भी मौजूद है और मौसम भी बड़ा प्यारा है और हम यहाँ दरिया रावी में सैर करने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। बारिश का भी मौसम बना हुआ है, ऊपर से रावी में भी पानी बहुत ज़्यादा है और कश्ती में भी झूले ले रहे हैं हम और बारादरी आए हुए हैं। बहुत अच्छा मौसम है। दरिया में पानी आने पर मला आफ्ताब भी खुश है। उसका कहना है शहरी दरिया का रुख कर रहे हैं जिससे इसे रोज़गार भी मिलेगा। दूसरी तरफ दरिया के किनारे आबाद खाना बदोशों को सैलाब के पेश नज़र महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। नाजरीन, खवातीन जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत और कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, वहीं लाहौर में एक 12 साला लड़की मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रही है। फातिमा नूर नामी ये बच्ची दिन में कई बार ये खतरनाक खेल खेलती है। इस खेल में फातिमा नूर के वालिद भी इसका साथ देते हैं। ये लड़की मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है, वो भी अपने वालिद को साथ बिठाकर, यानी मौत के कुएं के अंदर भी डबल सवारी की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है फातिमा नूर, खतरों की खिलाड़ी, जो रोज़ाना दिन में कितनी ही बार अपनी जान पर खेलती है। जी हाँ, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना और वो भी डबल सवारी के साथ आसान नहीं। 12 साला फातिमा नूर ने 7 वर्ष की उम्र में मोटरसाइकिल चलाना सीखना शुरू किया था। डरना नहीं चाहिए, मेरे तरह हिम्मत करे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे। बेटा कोई नहीं है, ये मेरी एक बेटी है। मैंने बोला पापा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे साथ काम करूँगी। इस कम उम्र लड़की की मुहारत देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए जरा सी गलती और बेहतियाती खतरनाक साबित हो सकती है। जी नाज़रीन, तो ये था इस हफ्ते का लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए अब इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जब तक सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की बहाली का काम मुकम्मल नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की 10 लाख रुपए माली मावनत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा भी बाकी सूबों की तरह 8 लाख से बढ़ाकर इस माली इमदाद को 10 लाख करे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड भी कायम कर दिया है। शामिल करते हैं अगली खबर। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एक तरफा तब्दील करने के गैर कानूनी अमल को 3 बरस मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों ने यौम इस्तेहसाल मनाया। आज़ाद और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय बर्बरियत को यौम सयाह के तौर पर मनाया गया और मुकम्मल हड़ताल की गई। भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और बैनुल अक़वामी बरादरी से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस लेने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोका गया और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। यौम इस्तेहसाल का अहवाल आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर के वारियर जिंदाबाद, कश्मीर के वारियर जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोका गया और खामोशी इख्तियार की गई। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा ने की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा भी रैली में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ख़ुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का हतमी फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज़ बना रहेगा। हम हक़ खुदइरादियत के लिए हर मुमकिन ताउन करते रहेंगे। पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीजन और आर्मी सेंटर ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी दौरा किया, जो आर्मी साइबर कमांड के 2 अहम अज्जा हैं। ISPR की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जंग की नौयत और किरदार बदल रहे हैं। हमें इन शोबों में अपनी सलाहियत और इस्तेदाद कार को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नई कायम करदा साइबर कमांड को बतदरीज तीनों सर्विसेज से मुंसलिक किया जाएगा और ये कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी साइबर इक़दामात का हिस्सा भी बनेगा। शामिल करते हैं अगली खबर। बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि शहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई, जबकि तीनों शहदा की तदफीन के वक्त पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। लसबेरा के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले 6 अफसरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिजाएं सोगवार, हर आंख नजर आई अश्कबार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा में की। नमाज जनाजा में गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने ज़ियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा के वरसा से भी मुलाकात की। शोहदा के जस्ते खाकी को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पायलट मेजर मोहम्मद सईद शहीद की तदफीन भी फौजी एजाज के साथ कर दी गई। लाड़काना में तदफीन के दौरान जज्बाती मनाजिर देखने में आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शहीद के वालिद को उनकी टोपी और दीगर सामान दिया गया। शहीद का सामान देने वाले अफसर ने उनके वालिद की बुलंद हौसले को देखकर हाथों और चेहरे को बोसा दिया। शहीद के वालिद को सैल्यूट भी किया। मेजर तलहा मनान शहीद और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। मेजर तलहा मनान शहीद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कमांडर रावलपिंडी कोर ने भी शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा जिला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सियालकोट गैरिजन, आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, फूलों की चादर भी चढ़ाई।
आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज चंद दिनों में तीसरी बार खोल दिए गए। एसडीओ हसन अब्बास का कहना है कि डैम में पानी की सतह 1751 फुट तक पहुंच गई है। पानी के लेवल को कम करके 1750 फुट किया जाएगा। रावल डैम इंतज़ामिया ने कहा कि डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की कुल गुंजाइश 1752 फुट है। रावल डैम के स्पिलवेज ओपन करने से कबल सायरन भी बजाए गए। सायरन का मकसद करीबी आबादी और नशेबी इलाके के मकीनों को अलर्ट करना था। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए इस साल रिकॉर्ड तादाद में कोहे पैमाओं की पाकिस्तान आमद हुई। गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदार साजिद हुसैन के मुताबिक K2 सर करने के लिए इस साल अब तक 207 परमिट जारी किए गए। कोहे पैमा K2 को माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल करार देते हैं। जुलाई का महीना अमूमन K2 को सर करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है क्योंकि मौसम बेहतर होता है। K2 को सर करना अगरचा मुश्किल है मगर सयाहों के लिए यहाँ आना माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। K2 सर करना माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में किस तरह सस्ता पड़ता है और परमिट किन शराइत पर दिया जाता है, इस पर हमने एक दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।